complex number is represented as z, which is a plus iota b, where a is real part of the complex number. शनाया, तुम्हारे फिजिक्स में कितना है? फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं? क्यों है? गंदे क्यों है? उसके तो 60 है 70 में से। हाँ, उसका मेरे पास मैसेज आया था, he got 60 मार्क्स। तुम्हें तुम्हें गंदे क्यों मिले? So this is real part of the complex number is A, imaginary part of the complex number is B. Conjugate of a complex number. Conjugate of Z is represented as Z bar. Conjugate of a complex number is represented as Z bar, and it is obtained by changing the sign of imaginary part. Z bar would be A minus iota B. So you get conjugate of a complex number by changing its imaginary part. If you take conjugate of conjugate, it will be the same complex number again. It'll be A plus iota B. So conjugate of conjugate would be the same complex number. Just like दो बार माइनस करो तो प्लस हो जाता है, तो Z bar whole bar would be simply Z. The conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of imaginary part. For example, if you have Z is equal to 2 plus 3 iota, then Z bar would be 2 minus 3 iota. So if you change sign of imaginary part, you get the conjugate of the complex number. हाँ, बार का बारंबार, दो बार बार. So if Z is A plus iota B, Z bar would be A minus iota B. So then Z plus Z bar would be 2 times A, or you can say Z plus Z bar is always 2 times the real part of Z. If you add conjugate with a complex number, you get twice the real part of the complex number. अगर हम Z माइनस Z बार निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 iota B. Z minus Z bar is 2 iota times imaginary part of Z. Z minus Z bar is 2 times imaginary part of Z. If you multiply a complex number with its conjugate, तो क्या होगा? A plus iota B into A minus iota B. तो Z bar would be A square plus B square, or Z into Z bar would be mod Z whole square. If Z is A plus iota B, then mod of Z would be always root of A square plus B square. If we have two complex numbers, Z1 plus Z2, and you take conjugate of the entire term, Z1 plus Z2 whole conjugate, it would be Z1 conjugate plus Z2 conjugate. If you have Z1 minus Z2 whole conjugate,
it would be Z1 conjugate minus Z2 conjugate. The conjugate will be distributed. अंदर वाले प्लस साइन में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट आएगा. Other properties of conjugate is if you multiply complex numbers and then take conjugate, it is the same as product of their conjugates. Z1 into Z2. Whole conjugate would be Z1 conjugate with Z2 conjugate. Similarly, Z1 by Z2. Whole conjugate would be Z1 conjugate by Z2 conjugate. Also, Z to the power n, whole conjugate would be Z bar to the power n. These are results which you have to remember. Hmm. Similarly, we have result for modulus also. Like if you have z equal to 2 minus 3 iota, mod z will be real part squared, which is 2 whole square. Imaginary part, which is 3 whole square. So it will be 4 plus 9 root 13. Modulus of a complex number is always a positive number. So mod z is always under root of real part of z whole squared plus imaginary part of z whole squared. Remember this. Modulus of a complex number would be always a positive real number. Modulus of a complex number would be always a positive real number. So if we have mod z1 into z2, it is equal to mod z1 into mod of z2. If we have mod z1 by z2, it would be mod z1 by mod z2. If you have z to the power n, whole modulus will be mod z to the power n. Very important result. In fact, this modulus thing can write it for n complex numbers also. If you multiply n complex number, take their conjugate, take their modulus, it will be same as find their modulus individually and then multiply them. Very similar to this here. If you take conjugate of z1, z2 till zn, whole conjugate would be z1 conjugate, z2 conjugate till zn conjugate. Cube root of unity, fourth root of unity, then the various other topics, they are all deleted in complex number. पहले बहुत डिटेल में था ये. पोलर फॉर्म है वो भी कर लेते हैं इसके बाद. दिस इज अ कार्टेशियन वे ऑफ राइटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ हाँ हाँ. कौन सा? एन बायनोमियल. ये लिख लिया सारा? हो गया.
अभी पोलर फॉर्म करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट, दैट इज द होल थिंग। ट्वेल्थ से जो क्वेश्चंस आएंगे ट्वेल्थ वाले सिलेबस से, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट कंपेयर टू द क्वेश्चंस ऑफ 11th सिलेबस। ठीक है, 11th के तुम फिर भी कर पाओगे, ट्वेल्थ भी कर लोगे, बट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इंटीग्रेशन काफी डिफिकल्ट आता है। If z is -1, if z equal to -1 plus √2 into iota, this is 2, then which of the following is not true? नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज ये तो सारे चेक करने पड़ते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z to the power 4 minus real part of z cube is equal to 4√2 minus 5। ऑप्शन को एक बार देख लेना, अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन में उसने क्या पूछा है, रियल पार्ट ऑफ z to the power 4 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब। दिस इज 2। हम्म, देखो ऑप्शन से तुम्हें पता लग जाएगा, बताना कौन सा सच्चा नहीं है, सब कौन सा झूठा है। तो ऑप्शन को देख के पता लग रहा है Z4, समझ गई ना, Z4 Z क्यूब निकालना पड़ेगा, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालो आराम से, डुएबल क्वेश्चन है, इट माइट टेक लिटिल मोर टाइम बस। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है, मेरे से भी हो जाएगा। सिर्फ हाँ, Z3 Z4 निकाल लो, ठीक है। फाइंड Z4 एंड Z3 एंड आराम से सॉल्व करो बिना जल्दबाजी के, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से, अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। एक ही गो में सही आंसर आना चाहिए। हम्म, Z की पावर 4 का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अगर इमेजिनरी पार्ट हुआ 4 होता तो होल होता फिर वो। तो एज वी कैन सी द ऑप्शंस, वी नीड टू फाइंड Z3 एंड Z4। सो पहले तुम Z² निकाल लो, फिर इसको Z से मल्टीप्लाई करो, Z3 आएगा, और फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय Z, Z4 आ जाएगा।
ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं कर सकते डायरेक्टली? बट नीड टू बी केयरफुल, गलती बिल्कुल मत करना। सिले मिस्टेक हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, सो -3 -2 √2 आयोटा जेड स्क्वायर। अगेन स्क्वायर कर दो उसको, Z4 आ जाएगा। स्क्वायर करो तो सारा प्लस हो गया। 9 माइनस। हम्म। ओ हाँ, कितना आएगा फिर ये? हम्म। -1 माइनस, राइट, स्क्वायरिंग अगेन, प्लस हो गया ना सारा अब तो। Z4 इज -7 प्लस 4 √2 आयोटा। Z³ के लिए इसको वापस Z से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये एमएसक्यू है। हम्म। ये एमएसक्यू है। नहीं नहीं, विच इज नॉट ट्रू, देखो ना, ये मुझे मालूम था इसमें लोग गलती करोगे इसमें। तुम्हें बहुत सारे सही नजर आएंगे। उसने पूछा विच इज नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई इट बिकम मोर लेंथी। Z³ इज 5 -√2 आयोटा, इज इट? Z³ क्या आ रहा है? अब 1 बाय 1 ऑप्शन में डाल के देखते जाओ। 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट इन ईच ऑप्शन। सर +√2 नहीं है? कौन सा? ये वाला? यस सर। ये प्लस था ना? हाँ। अब ऑप्शन डालो। ठीक तो है? नहीं, -1 -√2i, दिस इज +√2i, सो नाउ ऑप्शन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इज इट करेक्ट? ऑप्शन 1 इज imaginary part of Z4, which is 4 √2 minus real part of Z³. Real part of Z³ is 5. This is true, which is not true. ठीक है, बिकॉज वी आर टू फाइंड विच इज नॉट ट्रू। आधे लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन सही है, या ये आंसर है। -1, रैंक 1000 से पीछे हो गई। सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करो अब। Z4 का रियल पार्ट 4 √2, नहीं, -7, और इमेजिनरी पार्ट कितना है Z³ का? √2। बस यही आंसर है मेरे ख्याल से, इट्स नॉट ट्रू ना? ये करेक्ट है। सो द क्वेश्चन वाज विच इज नॉट ट्रू। फिर भी चेक करना है तो कर लो, इमेजिन सी सही है ना? बाकी दोनों गलत है। सही होना भी गलत है। मैक्सिमम 80, 80, 85 आ जाते हैं। But they give a lot of time, 90 minutes minimum. You need to give a lot of time. See,
एंट्रेंस में अगर मैथ्स में स्कोर करना है, दिस इज द स्कीम यू हैव टू गो. एप्टीट्यूड 30 minutes to 35 minutes. उसके बाद मैथ्स 90+ minutes. देन उसके बाद ये फॉलो करना पड़ेगा. और ड्यूरिंग दिस यू हैव टू गेट अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बिल्कुल फोकस, हाईली फोकस होकर मैथ्स करना है. तो एवरी क्वेश्चन विल बी लेंथी. हाँ, नहीं 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 नहीं, वो भी एप्टीट्यूड 30 मार्क में 50% तुम्हारा हो गया सिलेबस. ये सोचो ना, तुम वेटेज नहीं देखोगे. नहीं नहीं नहीं, 40 ले लो. 1 घंटा उसमें निकाल दोगे तुम 40 मिनट्स में. अगर स्कीम गलत हो गई ना, तुम देखो बहुत बुरा हो जाएगा. दिस इज यू फॉलो, शुड फॉलो दिस. कर लो. दिस इज द परफेक्ट, द बेस्ट way to write entrance of JEE paper 2. And similarly, I advise in JEE paper 1, पहले कर लो chemistry, फिर physics, फिर maths. Yes. केमिस्ट्री सबसे इजी आता है. एनसीईआरटी पढ़ के चलाओ, केमिस्ट्री हो जाएगा. वेरी हाईली स्कोरिंग. मैथ्स विल बी टफ. अब मैथ्स को तुम्हें फ्री होना पड़ेगा बिल्कुल दिमाग से, तब मैथ्स हो पाएगा. Polar form of a complex number. Cartesian form we have already seen. This is complex plane or Argand plane. This is real axis, similar to x-axis, and this is imaginary axis. If you have a complex number which is z is equal to x plus iota y, so this is also represented as ordered pair x comma y. So if x and y both are positive, the point will be in the first quadrant. If it's negative, it would be second quadrant, negative, positive. Third quadrant, it will be negative, negative. Fourth quadrant, it will be positive, negative. Suppose the complex number is here, x comma y. This angle is alpha. This distance is r. So in this triangle, right triangle, the base would be r cos alpha, and this would be r sin alpha. Distance of a point from x-axis is always the y-coordinate. This is y. Distance of a point from y-axis is always x-coordinate. इसको थीटा ले लेता हूँ. So if you look at this right triangle, r is under root of x square plus y square, which is also mod z, right? Theta is said to be argument of z. In short, you can write like this, argument z, or you can write amplitude. दो नाम है इसके, जैसे तुम्हारे दो नाम है ना. स्कूल का नाम शनाया, घर का नाम
बता दो सबको। तो आर्ग्यूमेंट z और विल यूज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। सो आर्ग्यूमेंट z थीटा, एंड थीटा इज ऑल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज ऑलवेज बिटवीन 0 to pi. This is a principal argument. हम्म अभी पर दोबारा बताता हूँ, को एक मिनट इसको छोटा करते हैं। आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। अब x को जरा देखो, x को आई कैन राइट r cos थीटा, y को आई कैन राइट r sin थीटा। सो ये कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये बन गई पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। सो दिस इज द पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में यू हैव x एंड y, इन पोलर फॉर्म यू हैव r एंड थीटा। r तो यू अंडरस्टैंड, ये हो गया r mod z, राइट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट विच इज लाइक दिस, पाई इंक्लूड करेंगे और माइनस पाई, ये होता है माइनस पाई टू पाई होता है। आई एक्सप्लेन यू क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लो सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज हियर एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्र में है, वो इज मेकिंग 30 डिग्री लाइक दिस, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 30 डिग्री हो गया, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज यहाँ पर है एंड दिस एंगल से इज 150, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट 150 हो गया। If a complex number is here and this entire angle says 250, the principal argument cannot be 250 because principal argument lies between minus 180 and 180. तो 180 कैसे होगा? Like this is 180 degree, but minus 180 would be this. This is minus 180. So if the complex number is in second or first quadrant, your principal argument would be 0 to 180 any angle. But if it's in third or fourth quadrant, principal argument cannot be more than 180. हमें कैसे करना पड़ेगा? We have to go clockwise. We go like this. The principal argument 360 minus 250, 110. So if the complex number is in third and fourth quad, principal argument negative आएगा हमेशा, ठीक है? So we have to always write a polar form of a complex number in such a way that this is satisfied. Now the question is how to convert any complex number in Cartesian form to polar form. ठीक है, तो उसके स्टेप्स में लिख रहा हूं अभी। हाउ टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। तुम्हें दिया होगा z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। फर्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाई x y, hence क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है पता लग जाएगा। इफ इट्स प्लस प्लस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, if it's minus plus it is second quadrant, if it's minus minus third quadrant, and plus minus will be the fourth quadrant, ठीक है। next you find r। r कैसे निकालोगे? r is x square plus y square। third step would be find tan alpha by taking positive value of y and positive value of x। by using positive x and positive y, tan alpha आ गया। and then look at this diagram to know the principal argument. If the complex number is in first quadrant, whatever is your alpha, same would be the principal argument, because your answer has to be in terms of principal argument. If complex number is in second quadrant,
Alpha will not be principal argument. Alpha would be pi minus alpha. Theta principal argument would be pi minus alpha. If complex number is in third quadrant, principal argument will not be alpha, but it will be alpha minus pi. And if the complex number is in fourth quadrant, principal argument would be simply minus alpha. So this is how you can convert any complex number into polar form. एक क्वेश्चन करते हैं. Suppose we have a complex number minus 1 minus root 3 iota. And the question is convert this into polar form. यहीं पे लिखते जाते हैं इसके सामने. First step, identify x. X कितना है? And what is y? This is the first step. Then you find r. Second step, r is under root a square b square, that is r is 2. r की वैल्यू आ गई. The next step is find tan alpha by positive y and positive x. Tan alpha would be positive y is root 3, positive x is 1. Alpha, tan alpha root 3 कब होता है? 60 degree or pi by. But principal argument, since complex number is in which quadrant? Third quadrant. Principal argument will not be 60, it would be alpha minus pi. 60 minus 180. That is minus 120 or minus 2 pi by 3. So therefore the complex number is z equal to r cos 2 pi by 3 plus iota sine 2 pi by 3. तो And if माइनस you क्या है? hmm? माइनस माइनस हाँ टू पाई माइनस सॉरी माइनस था ना, माइनस यहाँ भी माइनस. तो तुम अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो cos 2 pi by 3 sin minus theta is minus sin theta. ये आ जाएगा. And if you replace, if you substitute the value of cos 120, which is minus half, sin 120 is root 3 by 2, we'll get the same answer again. वो कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा वापस. It will be again the Cartesian form. लिख लिया सारा? More questions? मैं questions लिख रहा हूँ, तुम्हें कन्वर्ट करना है उनको. Convert into polar form.
पोलर फॉर्म में आयोड हमेशा साइन के साथ आएगा, ठीक है। इन सबको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। थर्ड वाले में, हाँ, ब्रैकेट ओपन नहीं भी करना तभी हो जाएगा, हो जाएगा। थर्ड वाला मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ वैसे। थर्ड मैंने चेंज किया है, देख लो। मेरा फर्स्ट वाला था ये, फोर्थ कोड आ गया ना ये। ठीक। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई हेंस द क्वाड्रेंट। tan अल्फा निकलेगा तो उसको रैशनलाइज करो। कौन कौन से क्वाड्रेंट थर्ड वाले में? पक्का? ये प्लस है, नो डाउट। व्हाट अबाउट दिस? प्लस कैसे हो गया? 1 - √3, अरे √3 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है थर्ड वाले में। इट इज नॉट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लुक एट द वैल्यू। ये तो सेकंड क्वाड कौन सा था ये? फोर्थ। √2 तो आर आ गया, फोर्थ में माइनस अल्फा हो जाता है। cos π/4 माइनस आइडा साइन π/, दिस इज सेकंड क्वाड। मॉड इज 2, 1/√3, मतलब cos अल्फा π/6 आ रहा होगा, है ना? 5π/6, right? Now this is basically √3 - 1 is negative. So it's plus minus, it is fourth quadrant. R तो तुम निकाल ही सकते हो easily, no problem. 2 √2, which is 2 √2, no? R is coming out to be 2 √2. And this is basically which quadrant? Plus minus. Notice this, 1 - √3 is a negative number. It's plus minus.
अब tan अल्फा कैसे आएगा? tan अल्फा आएगा बाय टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y विच इज √3 - 1। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विच इज √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज कर लो। द मोमेंट यू रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या आंसर आ रहा है? tan अल्फा इज कमिंग आउट टू बी √3 - 1 होल स्क्वायर बाय, नहीं, इसको पॉजिटिव करना है, इसको पॉजिटिव करो, मॉड किया ना इसीलिए। So this is tan alpha is coming out to be 2 minus √3. 2 minus √3, if you all remember, alpha कितना हो? tan 15 degree is 2 minus √3. सारे रिजल्ट लिखवाए हुए हैं। tan 15 is 2 minus √3, tan 75 is 2 plus √3, रिजल्ट याद कर लेना। sin 18 is √5 - 1/4, cos 36 is √5 + 1/4। ये बिल्कुल याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स में होने चाहिए सारे रिजल्ट्स। साइन 18 और कॉस 36 रिपीट करना। sin 18 is √5 - 1/4. Sin 18 is √5 - 1/4। cos 36 इसका कॉन्जुगेट होता है, √5 + 1/4। tan 22.5 is always √2 - 1। छाप लो दिमाग में ये। tan 67.5 is √2 + 1। tan 75 is 2 plus √3, tan 15 is 2 minus √3। अब तो आ ही जाएगा ये। इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस tan 15 हो गया, तो 2√2 is the modulus. This is cos -15, which is +15 only, minus आइडा sin 15। तो इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -15, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ इज sin 5 + आइडा cos 5। 5 इज लेस देन 90। तो अगर 5 लेस देन 90 हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन tan ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल टी रेशियोज, तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कोई इशू नहीं है। द फोर्थ वन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर प्रॉब्लम ये है कि आयोटा इज विद कॉस, आयोटा शुड बी विद साइन। इसका मॉड कितना आएगा? एक्स इज साइन 5 एंड वाई इज कॉस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड इज 1। तो अगर इसको कॉमन सेंसिकली करो तो वैसे डायरेक्टली भी हो सकता है ये। मॉड तो इसका 1 आ ही रहा है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस को साइन में कर दो। 5/2 - 5 आयोटा साइन 5/2 - 5। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज 5/2 - 5। द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म आयोटा साइन के साथ आएगा। मेथड से अगर करना है तो इफ यूज मेथड, विल राइट tan alpha is equal to positive y which is cos phi and positive x which is sin phi. So tan alpha is cot phi, but cot phi is tan 90 minus phi. That means alpha is 90 minus phi. Since it's first quadrant, alpha would be theta only. That's the fourth one. नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे क्वाड्रेंट बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट है? हम्म, पक्का सोचा? ऐसे
कॉस 330 माइनस आइडा साइन 330। नहीं, थोड़ा दिमाग स्प्लिट करना है बस। तुम बताओ क्यों कर रही हो कन्वर्ट, देख के नहीं पता लग रहा? देखो, एनीवन फिफ्थ? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. विच क्वाड्रेंट इज दिस? First. मान लो एमसीक्यू होता कि दैट फाइंड इट्स आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कॉस 330 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 330 कॉस पॉजिटिव होता है, बरोबर है। साइन 330 साइन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव तो प्लस प्लस बोले तो ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसका मोड तो ऑलरेडी 6 दे रखा है, इसका आर्गुमेंट बताना है तुम्हें। फाइंड इट्स आर्गुमेंट एंड दिस आंसर हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस प्लस है ना। आर्गुमेंट का आंसर आएगा 0 और 90 के बीच में। कर लो। फाइंड इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अल्फा। हाँ, आर्ग्यूमेंट या अल्फा? अल्फा और आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है। नो आर्ग्यूमेंट्स। अल्फा का नाम ही आर्ग्यूमेंट है। मॉडुलस होता है आर, ठीक है। तो देखो, टैन अल्फा तुम्हें फाइंड करना है ना, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस साइन 330, उसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब माइनस लगा के तो पॉजिटिव आ रहा है वो, तो ये तो बचपन से पॉजिटिव है बेचारा। अब क्या करोगे? माइनस साइन, सिंस इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर 0 90 के बीच में होना चाहिए। 330 को मैंने लिख दिया 360 माइनस 30। क्या वैल्यू भी निकाल सकते थे ना? क्यों? हाँ, जो मैं कह रही थी वही 360 माइनस 30। सो दिस इज 360 माइनस 30 कर दिया मैंने। कॉस 360 माइनस 30, किसी भी टी रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, यू कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाइज। लाइक इफ यू हैव some t ratio 2k pi plus minus theta, you can always neglect this। तो क्या आंसर आएगा? t प्लस माइनस थीटा। जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है साइन 720 दे रखा है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? नहीं, 750 ले लेते हैं, तो जाएगा 720 प्लस 30। इसको हटा दो, आंसर है साइन 30। तो ये हट जाएगा, तो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस 30, तो ये जाएगा कॉस ऑफ माइनस 30, तो दिस वुड बी साइन 30, विच इज, वैसे एंगल ही आ गया ना, साइन 30 बाई कॉस 30, टैन 30 हो गया। तो अल्फा आ गया, दैट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक्चुअली एक क्वेश्चन था जे में आ चुका है पहले, उसमें था 6 cos 310 माइनस आइडा साइन 310। हाँ, वो इजी कर दिया मैंने। 310 अगर होता तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 50 आता। हाँ, अगर मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज 1, तो 1 का पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे? या प्योरली इमेजिनरी आयोटा, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा? -1 का क्या होगा, और माइनस आयोटा का क्या होगा? इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का मॉड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 1। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 0। तो इसका पोलर फॉर्म हो गया 1 × cos 0 प्लस आइडा साइन 0। ये 1 का पोलर फॉर्म है। देखो, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1।
आयोटा का पोलर फॉर्म, आयोटा का मॉड 1 होता है, ठीक है। हाँ, भाई आयोटा क्या है? आयोटा इज 0 + 1 × आयोटा। तो अगर तुम मॉड लोगे तो क्या होगा? रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है उसका। और ये कितना, आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। -1 का क्या होगा पोलर फॉर्म? मॉड तो 1 हो गया, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कॉस पाई होता है -1 साइन पाई 0। व्हाट अबाउट माइनस आयोटा? माइनस आयोटा का मॉड तो 1 हो जाएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो लाइक दिस क्लॉकवाइज, विच इज -90। तो कॉस π/2 साइन -π/2 जाएगा -sin π/2। ये 4 रिजल्ट याद कर लेना। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इन सबका पोलर फॉर्म। और अपने पी बोर्ड के रिजल्ट से घबराना मत, जैसे भी आया आने दो। अभी जेई तक फोकस करो कंप्लीटली ऑन एंट्रेंस। बोर्ड प्री बोर्ड तो वैसे ही हो जाते हैं, 15 दिन की तैयारी में तुम अच्छा कर लोगे, बोर्ड में 90+ आ जाएंगे। रहने दो, दे दो, हाँ। ठीक है। अब सम मोर रिजल्ट्स, हालांकि वो जैसे कि अब बिल्कुल रैशनलाइज कर दिया हमने इस पर, सिलेबस में वो आ जाता है क्वेश्चन ना। मैंने देखा कि जे पेपर 1 में तूने काफी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, पेपर 2 में देर स्टिल रिस्ट्रिक्ट टू द जेई 11th 12th सिलेबस। कुछ रिजल्ट और बता देता हूँ मैं, जैसे कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नहीं ओमेगा 1 के अगर हम क्यूब रूट निकालें, सपोज x = 1 की पावर 1/3 है, ठीक है। तो हाँ, तो दोनों साइड का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? x³ = 1 और x³ - 1 = 0। इफ आई फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग a³ - b³ विल बी a - b, a² + ab + b², राइट। तो एक रूट तो रियल आ गया, x = 1। दूसरा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। आई एम डूइंग दिस बिकॉज क्वाड्रेटिक में एक आ सकता है। लिखो इतना, एक बार लिखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो रियल रूट ऑफ 1 के अगर हम क्यूब रूट निकालें तो रूट आएगा 1, जो कि रियल रूट है। दूसरा, हम डी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। -b + - b² - 4ac/2a। So this root will be कॉम्प्लेक्स रूट। इसका नाम है ω/ω²। सो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1, ω/ω²। ये 3 रूट होते हैं क्यूब के। इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन यूज इट। ω/ω² कैन इंटरचेंज ऑल्सो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्ट वो नहीं है, बट एक गिवन क्वेश्चन में इफ आई हैव टेकन ओमेगा एज √3 -1 + √3 i/2, तो दूसरे सेम क्वेश्चन में ω² तुम्हें ये लेना पड़ेगा। इफ यू टेकन दिस इज ओमेगा, देन इसको ω² ले लोगे। सो द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो, ω/ω² एक दूसरे कॉन्जुगेट है।
ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा. दे ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ऑल्सो ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज वन. इनफैक्ट ओमेगा की जो पावर्स हैं मल्टीपल ऑफ थ्री वो हमेशा वन होती है. जैसे ओमेगा टू पावर फाइव है तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब इज वन, सो ओमेगा स्क्वायर हो गई. दूसरी बात, इस क्वाड्रेटिक के हमेशा रूट कौन से होंगे, ये वाले. इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक x square plus x plus 1 equal to 0, its roots will be always omega omega square. And yet another result, sum of cube roots of unity is always 0. 1 plus omega square is always 0. Can you tell me the root of this equation? X square minus x plus 1 equal to 0. बताना, find the roots of this. X square minus x plus 1 equal to 0 के रूट बताओ. डी मैट्रिक्स से कर लो. डिस्क्रिमिनेंट प्लस वन होगा ना, माइनस भी होता है. क्या आ रहा है? 1 plus minus root theater by 2. Right. Which are nothing but minus omega and minus omega square. x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के रूट हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे. लिख लिया. Then some geometrical representation. For example, suppose मानो z है में x plus iota y. तो mod z अगर तुम्हें दे रखा है, suppose mod z equal to r. Tell me what does it represent? कि mod z equal to a ले लेते हैं. A is a real number. तो mod z equal to a क्या represent कर रहा है geometrically? Distance of z from origin. सो वो अगर वो तुम अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है? Circle. यस, इट्स अ सर्कल विद सेंटर एट द A. origin radius a. So it represents the circle with center at the origin and radius a. लिख लो. तो अब इसको देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्या है ये? It is a circle with center at origin and radius a units. अगर सपोज मॉड z इक्वल टू 5 है, इसका मतलब सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स एंड सेंटर एट द origin. मान लो यू बीन गिवन z माइनस z नॉट इज इक्वल टू से r. अब क्या हो रहा है? where z is x plus iota y
and z naught is h plus k iota. करो उसको सिंप्लीफाई. हम्म. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए. हाँ, तो वापस ये हो गया x माइनस एक्स नॉट, सॉरी एक्स जेड तो x प्लस आइटा y है. ये हो गया h प्लस के आई मॉड इक्वल्स टू r. रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी अलग कर दो. ये आ गया. फिर मॉड कैसे निकलता है? रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो. इसको देख के कुछ हो रहा है? क्या है ये? इट इज अ सर्कल विद सेंटर h कॉमा k. इट इज अ सर्कल विद सेंटर h कॉमा k रेडियस r. मतलब द मोमेंट यू लुक एट दिस यू शुड नो क्या है. सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर दिस. मान लो दे रखा है z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इक्वल टू 7. इसका मतलब क्या हुआ? z माइनस टू, z माइनस टू प्लस रूट प्लस थ्री आयोटा मॉड इक्वल टू 7. क्या है ये? विद सेंटर -2 + 3. सेंटर इसका हो जाएगा 2 कॉमा माइनस थ्री. माइनस टू कॉमा माइनस थ्री हो गया ना रेडियस, सॉरी सेंटर. रेडियस कितना हो गया? 7. बस. तो ये याद रख लेना कुछ रिजल्ट्स. इफ यू हैव z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इज इक्वल टू k, एंड इफ k इज 1, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. इफ यू हैव z माइनस z1 ओवर z माइनस z2, zx प्लस आइडा y, तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन. तुम चाहो तो एक क्वेश्चन कर लो. z ओवर z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इक्वल्स टू k इक्वल्स टू से 1. सॉल्व करके बताओ क्या है ये. इट वुड बी स्ट्रेट लाइन बट क्या आएगा उसका आंसर? यू कैन टेक z एज x प्लस आइडा y. z को x प्लस आइडा y से रिप्लेस करो और सिंप्लीफाई करो. z की जगह x प्लस आइडा y डालो. आयोटा y. नीचे भी वही सब्स्टिट्यूट करना है. अलग अलग भी कर सकते हो. तो ये आएगा x माइनस टू आयोटा कॉमन y प्लस थ्री मॉड इक्वल टू 1. फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दो. रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. क्या हुआ? गर्मी लग रही है? ऐसे चला ना. z को अलग अलग कर दिया, रियल अलग इमेजिनरी अलग. और इसका मॉडुलस निकालो. स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड का. r कहाँ से आ गया? ये था ना. ये जाएगा राइट में, जाएगा लेफ्ट. मॉड. हाँ. हम्म.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द रूट, इसका तो मॉडल होगी। और क्या, दोनों साइड का होगा। ये था ना मॉड z1 बाई z2 इज मॉड z1 बाई मॉड z2। क्या रहे? अभी तो बताया था। मॉड x प्लस आइटा y इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिन पार्ट स्क्वायर। वो यहाँ यूज करो। ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इट इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। आ गया ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। So whenever you have this kind of situation, when it's been given to you and k is 1, it would be a straight line. And if k is not 1, then it will be a circle. राइट साइड में अगर 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, वो हमेशा सर्कल होगा वो। हम्म। Mod of z plus 2 is 1. Imaginary part of z plus 1 by z plus 2 is 1 by 5. Then the value of real part of z plus 2 bar is कर लो। z को x प्लस आइडा बाई ले लेना। हम्म। कौन सा? सीओडी सेम आ गए कैसे? कैसे बताओ। वो रूट में है, वो रूट के बाहर है।
तो तुम बोले √26 डी में है √24/5। हाँ तो डी में क्या होगा √24/5 होगा। बट उसको अगर हम कहेंगे तो रूट तो रूट क्यों करेंगे उसको? मुझे बताओ √24 और 24 सेम होते हैं क्या? दिस इज 24, दिस इज √24। कैसे? लाइक 2 एंड √2 कैन बी सेम। क्या करना है इसमें, z को x प्लस आइटा y ले लो और काम पे लग जाओ। सिमिलरली यहाँ पे बट प्रिटी लेंथी, z+1/z+2 को तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1/5 भी करना पड़ेगा। दिल बी 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, x+2 प्लस आइटा y इज इक्वल टू 1। दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ x+2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। So one equation is this. सेकेंड इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करो, z को रिप्लेस करो x प्लस आइटा y से, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो और उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल के उसको 1/5 के इक्वल करो। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं ये, बट दे आर डूएबल। देयर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, कर पाओगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। दैट इज वाई 90 मिनट्स मिनिमम फॉर मैथ्स। This is x+1. I'm separating real part and imaginary part. In the denominator also, separating real part and imaginary part. Rationalize the denominator because I need to find the standard form. The conjugate of denominator is this. अब यहाँ पे there's a trick that since we are looking only for imaginary part, सिर्फ imaginary part निकाल लेते हैं, पूरा solve नहीं करेंगे। imaginary part कैसे आएगा? When you multiply real with imaginary, तो imaginary आ जाता है। When you multiply imaginary with real, तो भी imaginary आता है। I'm just forgetting the real part, मैं solve नहीं कर रहा, उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो कोई जरूरत नहीं है ना, हमें सिर्फ imaginary part निकालना है, सिर्फ imaginary part निकाल। डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर इज x+2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Remember that whenever you find conjugate, when you multiply a number with conjugate, you always get a square plus b square, ठीक है? डिनोमिनेटर में वो कॉन्जुगेट था, तो ये आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आयोटा में हटा रहा हूँ, ठीक है? -yx माइनस वाई yx प्लस 2y डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 1/5। इमेजिनरी पार्ट इज 1/5। लो कर लो बात, ये तो कट ही गया। सर हाँ, सर डिनोमिनेटर z+2 = 1 के इक्वल है, सीधा सीधा z+2। फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल है। हाँ भाई, अब उसको यूज कर लेते हैं, उसको 1 हाँ डाल सर, देते हैं, उसको y की कर वैल्यू सकते आ हैं। गई, ठीक है, परफेक्ट, गुड। वी हैव यूज्ड दिस। सो दिस इज y, दिस इज 1 इक्वल टू 1/5, मतलब y की वैल्यू आ गई। गॉड इज ग्रेट। अब y को 1/5 इसमें डाल दो वापस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई को 1/5 सब्स्टिट्यूट करो, एक्स निकालो कितना आ रहा है। क्या हुआ? हम्म, कोई बात नहीं, मम्मी को बता देना, वो पॉसिबल कर देंगे। एसी चला देते हैं। अरे, many people still have a practicals going on, pre-board going on, can't। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अब, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। किसने किया, x की वैल्यू निकाली? कैसे चलेगा काम? x+2 होल स्क्वायर, ओहो, इक्वल टू 1 - y²। x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 24/25। अब उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, पहले इसको जरा देखो, मैं फाइंड क्या करना है। z+2 के कॉन्जुगेट का रियल पार्ट, व्हाट इज z+2? z+2 इज x+2 प्लस आइटा y, राइट? ये हो गया z+2। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट होगा, राइट। अब इसका रियल पार्ट कितना हो गया? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस? x+2. x+2। अब x+2 रियल पार्ट आ गया इसका, है ना? उसका मॉड निकालना है, मतलब x+2 मॉड फाइंड करना है। इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, जब इसको मैं सॉल्व अब मैं कर रहा हूँ। √24/5, √24 कितना होते हैं? एंड आई टेक पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज मॉड लेना है। √24 इज नॉट 24। केमिस्ट्री में तुम्हें याद दिला दिया था ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। कितने हैं? 30 से भी कम। 2√6/5 is the answer. It's a recent question of JEE paper 1. Yes. पेपर 2 में तो इजी था क्वेश्चन, उससे पहले टफ था। वो चेंज होता रहता, लाइक स्टिल। नहीं, ऐसा नहीं है। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? हम्म, यस। अच्छी तो क्या मतलब, पहुंच जाते हैं। हम्म,
Z1 Z2 कॉन्जुगेट होंगे ना एक दूसरे में। हम्म Z1 Z2 का y पार्ट सेम होगा ना वो। हाँ, because z1 plus z2 they have the sum is purely a real number. That means they are conjugate of, they might, I mean, not conjugate, the imaginary part is negative of each other. Since z1 plus z2 is a real number, you have to take z1 like x1 plus iota y ले लो, और z2 कितना हो जाएगा, x2 minus iota y. Then only the sum would be a real number. Their imaginary part are equal and opposite in sign. जब उनको ऐड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा. सो x1 प्लस x2 कितना आ रहा है, 5. Then you can apply this. You can use a cube plus b cube over here, है ना. The second relation you can use a cube plus b cube. याद है ना, a cube plus b cube. So it will be a plus b, a square plus b square minus ab. This is 5 है ना, इसके लिए 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, उधर 5 कट जाएगा ना, 4 प्लस 3 आयोटा. अब z1 z2 को रिप्लेस कर दो. नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस 3z1 z2. एम आई राइट. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस 3z1 z2. ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज z1 प्लस z2 5 दे रखा है. ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो. हाँ, अब z1 z2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, x1 x2 माइनस x1 y आयोटा, x2 y आयोटा और प्लस वाई स्क्वायर. ये इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा. इसको राइट में ले जाओ, उसको लेफ्ट में ले जाते हैं. 21 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 3. यहाँ कुछ हो सकता है क्या, फिर अदरवाइज विल कंपेयर रियल पार्ट विद रियल पार्ट, इमेजिनरी विद इमेजिनरी. कुछ नहीं है हमारे पास तो. x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट हो गया, आयोटा कॉमन ले लो, माइनस x1 y प्लस x2 y. 3 से कट जाएगा पूरा, 7 माइनस आयोटा. Now you can compare real with real, imaginary with imaginary. So when you compare real part with real part, तो क्या इक्वेशन आएगी, x1 x2 plus y square equal to 7 and minus x1 y plus x2 y is equal to -1. चाहो तो y कॉमन ले लो, x2 minus x1 is equal to 1. एक ही रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट है, एक ही है हमारे पास. यहां से y इसमें डाल सकते हैं, है ना. लंबा इक्वेशन है.
यहाँ से y फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। हम्म या फिर इसको तुम क्या करोगे, वाई स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2, नहीं प्लस माइनस 4x1 x2, है ना। वाई स्क्वायर 10, बिकॉज इसका 2x1 x2 से कट जाएगा ना। हाँ तो ये प्लस x1 x2 है, यहाँ इसमें तो 2x1 x2 आ रहा है। अरे 2x1 x2 कटेगा नहीं 4x1 x2 से। अरे यार, आज ना केमिस्ट्री का मैंने से पूछ के गलती कर दी। अब बताओ क्या आ रहा है ये। अरे देखो ना, अब क्या है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा ये। x1 स्क्वायर प्लस x2 का माइनस 2x1 x2 आ रहा है, वो इसका स्क्वायर ही तो है, वो तो लिखा है मैंने। मैंने क्या आइडेंटिटी यूज किया, आई यूज दिस आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, बिकॉज आई हैव वैल्यू ऑफ दिस x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू 5 है ना मेरे पास, तो इसकी वैल्यू 5 है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर 25 माइनस 4x1 x2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना इजी है, यहां से x1 x2 निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वो y में क्वाड्रेटिक y की वैल्यू आ गई, x1 x। हाँ ये भी कर सकते हो। इसका मैं आंसर बताता हूँ, घर पे करना उसको। इसका आंसर है बी फॉर मुंबई 75। हाँ ये ना ऑप्शन। तो कर लेना। अभी एक बार जे को टाटा बोल दो, उसके बाद नाटे की बात करना, ठीक है। ऑल राइट, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट क्लास।